आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन, बुखारी शरीफ। हर भलाई सदका है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। 10 साल बाद हैदराबाद के दोनों ज़ख़ीरे-याब हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज, आला अहदेदारों का जायजा इजलास। मुजाहिद आज़ादी कुंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तकरीब, कमिश्नर साइबराबाद ने पेश किया खिराज अक़ीदत। बोधन सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स का गैर जिम्मेदाराना रवैया, आवाम परेशान। 10 साल की मुद्दत के बाद शहर की प्यास बुझाने वाले जुड़वा ज़ख़ीरे-याब हिमायत सागर और उस्मान सागर पानी से लबरेज हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से ये दोनों ज़ख़ीरे-याब लबरेज हुए हैं। इस खुसूस में जिला कलेक्टर रंगारेड्डी की सरपरस्ती में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़ख़ीरे-याब से पानी के अखराज के मुताल्लिक़ गौर व खौस किया गया। एसीपी राजेंद्र नगर चक्रवर्ती ने बताया कि पुलिस की जानिब से दोनों ज़ख़ीरे-याब पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और आवाम को ज़ख़ीरे-याब के मुशाहिदे से रोका जा रहा है और मूसा नदी मुत्तसिल इलाकों और नशीबी इलाकों में आवाम को चौकन्ना कर दिया गया है। इस इजलास में आरडीओ रंगारेड्डी, चंद्रकला और कॉरपोरेटर्स और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हिमायत सागर रिजर्वायर शुभदिनम సుమారు ఒక దశాబ్దం తర్వాత రిజర్వాయర్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నిండు కుండల ఉన్నది. ఆల్మోస్ట్ 1764 ఫీట్ వరకు వాటర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు, ఐడిఓ మేడం, అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చి దీన్ని పరిశీలించిపోయారు. ఇంకా కొద్దిగా ఫ్లో రాగానే నీళ్లు ఎప్పుడైతే వదిలిపెట్టాలనే డిసిషన్ తీసుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా మేము ఇక్కడ అన్ని బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా ఎవరు రావడానికి వీల్లేదు. ఇన్ కేసు నైట్ వదిలితే కూడా మేము ఈ పరివాహక ప్రాంతం అంతా ఈ కాలువ ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ బుద్వేల్ ప్రాంతం నుంచి కానీ, డాక్టర్స్ కాలనీ నుంచి కానీ, అలాగే మూసి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సౌత్ జోన్కి వెళ్ళిపోతుంది వాటర్. దానికి పకడ్బందీగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులకు అలర్ట్ చేశాము. టోటల్ బ్యాంక్ అన్ని బ్యాంక్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంకా కొద్దిగా నిండే అవకాశం ఉన్నది. ఈ నైట్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ అధికారులు, వాటర్ వర్క్స్ అధికారులు, అలాగే కలెక్టర్ గారు వచ్చి డిసిషన్ తీసుకొని ఎప్పుడైతే నీళ్లు గేట్ నుంచి వదిలిపెట్టే ప్రారంభం చేస్తారు. जुबली हिल्स हल्का असम्बली में मुकामी एमएलए मागंटी गोपीनाथ ने डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीहुद्दीन के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिसमें 65 लाख की लागत से कम्युनिटी हॉल, सीसी रोड, अंडरग्राउंड ट्रेनेस के काम शामिल हैं। इस मौके पर एमएलए मागंटी ने कहा कि हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एमपी चेवरला रंजीत कुमार ने आज मुकामी एमएलए प्रकाश गौड़ के साथ हिमायत सागर पहुंचकर ज़ख़ीरे-याब में पानी की सतह का जायजा लिया और पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की आवामी खिदमत से कुदरत भी मेहरबान है, इसीलिए रियासत में रिकॉर्ड बारिश हो रही है और हर तरफ सरसब्जी और शादाबी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो चौकन्ना रहें, क्योंकि किसी भी वक्त ज़ख़ीरे-याब के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा सकता है।
నిజంగా వర్షాలు మంచిగా పడతాయని చెప్పి ఆ నినాదంతో ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టారో 6 సంవత్సరాల నుండి హరితారం ఎఫెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎంత మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈరోజు స్థానిక శాసనసభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారితో, మేయర్లతో, చైర్మన్తో, ప్రజాప్రతినిధులు అందరితో, సీనియర్ నాయకులందరితో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. హిమాయత్ సార్ గండిపేట చూస్తుంటే నేను ప్రకాష్ అన్న కిందికెళ్ళి శాంతింపజేయాలని చెప్పి పూజలు చేసి ఇద్దరికి ఒకటే ఫీలింగ్ వచ్చింది, అబ్బాయి ఇంట్లో ఈత కొడితే బాగుండని చెప్పి. ఎన్నాళ్ళు నుండి అనుకుంటున్నాం నిజంగా ఇట్లాంటి తెలంగాణ చూడాలని చెప్పి. ఇట్లాంటి మనకు దిశానిర్దేశం చేసే కేసీఆర్ గారు ఉన్నందుకు అప్పటికెళ్ళి ఇప్పటిదాకా చేస్తూ పోతే ఆ హరితారం నిజంగా హరితారంతో 10% గ్రీన్ బెల్ట్ పెరిగింది మొత్తం యావత్ తెలంగాణ. 29 రాష్ట్రాల్లో పెరిగిన గ్రీన్ బెల్ట్ ఒక తెలంగాణలో పెరిగింది. దాని ఎఫెక్ట్ ఇవాళ ఇంత మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. వర్షాలు పడితే సస్యశ్యామలు ఉంటుంది. ఎక్కడైనా కడుపు నిండా నీళ్లు చూసి వరి పొలాలు చూస్తే ఎంత సంతోషమో, ఎప్పుడైతే కలలు కన్నామో అవన్నీ వాళ్ళ చూస్తుంటే నిజంగా అందరికీ తెలంగాణ రావడం అంటే ఏందో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏందో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर नामजद किए जाने के बाद साबिक रियासती वजीर डी.के. अरुणा ने आज रंगारेड्डी की मशहूर चिलकूर बालाजी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उन्होंने इस मंदिर से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहा कि जब कभी किसी ओहदे पर वो नामजद हुई तो सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा की। उन्होंने कौमी नायब सदर नामजद करने पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। जो गुलाम्बा गदवाल जरी मार्केट कमेटी की नई आमेला की तकरीब हल्फ बर्दारी अमल में लाई गई। इस मौके पर बहसीत मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली गदवाल कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि आज मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ कवानीन बनाते हुए किसानों की हक तलफी कर रही है, लेकिन केसीआर की क़यादत वाली टीआरएस हुकूमत नए रेवेन्यू कानून जैसे कवानीन बनाते हुए किसानों के हाथ मजबूत कर रही है। इस मौके पर बहसीत सदर नशीन कमेटी रामेश्वर अम्मा और बहसीत नायब सदर संजीवलू ने दीगर डायरेक्टर्स के साथ हलफ लिया। हिमायत सागर के लबरेज होने की तलब पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस हल्के राजेंद्र नगर ने कॉरपोरेटर्स के हमरा हिमायत सागर का दौरा किया और वहां मौजूद ओहदेदारों के साथ मुलाकात करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और पानी छोड़ने के मुताल्लिक मुकामी RDO से भी बात की। इस मौके पर दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। गेट सिस्टम रहेगा, गेट खोलने के टाइम पे ऊपर हैंडल रहेगा, 2-3 आदमी जाके ऑपरेट करते हैं। गेट 5,000 क्यूसेक्स आ रहे, वो भी दोनों मिलके आए तो आप थोड़ा ये बगीचे आता रहते ना सब पानी हिमाचल। हाँ बगीचा ये है आप जैसा अपन नीचे गए ये ऊपर का वही है, ऊपर का गेट नीचे देखे ना अपन హలో హలో ఆయన పంపేయండి, నేను 15 మాట్లాడండి 1757.35 अभी अपन लेवल लेके भी आधा घंटा हुआ ना, आधा घंटे में थोड़ा बढ़े 0.5 है, अभी 3 पे है। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं जो कि हिमायत सागर के पानी का फ्लो बढ़ने की वजह से तकरीबन 1757 3.5 अभी लेवल है और 1763 500
जब आ जाएगा 6 फीट पानी बढ़ेगा, बढ़े बाद यहाँ के दरवाजे खोले जाएंगे। तकरीबन 17 दरवाजे हैं हिमायत सागर के, मगर पानी का जो इनलेट है, इनलेट देखते वहाँ आउटलेट छोड़ेंगे। तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ के जितने ये मूसी नदी जहाँ तक जा रही है, वहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे धोबी भाइयों के लिए और जो भूया रहते, जो मच्छी पकड़ते मछुआरों को भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि रात में या सुबह तक ये दरवाजे खुलेंगे, तो आप लोग हिफाजत से रहिए। और ख़ास तौर पे जो मूसी नदी के बाजू से जो बस्तियाँ हैं, उन लोगों से भी गुजारिश है हमारी कि आप लोग हिफाजत खुद इख्तियारी में रहिए। मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश के मौके पर आज कमिश्नरेट साइबराबाद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस वीसी संजना ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई और 2 मिनट की खामोशी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कमिश्नर साइबराबाद ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी एक अजीम मुहिब वतन थे। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया। नुमाइंदा साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। అందరూ కూడా తెలుసు 2014 తెలంగాణ రాష్ట్ర రాకముందు చాలాసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర కోసం చాలాసారి పోరాటం జరిగింది. చాలా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర కోసం చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైన మన కాళోజీ గారు, మన జయశంకర్ గారు, మూడో వ్యక్తి మన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు. ఎందుకంటే ఎన్నోసారి పోరాటంలో ఆయన చాలా పాల్గొన్నారు, చాలా చురుకుగా పాల్గొన్నారు. లక్ష్మీనారాయణ చెప్పినట్లు ఆయన పేదవాళ్ళ కోసము చాలా కృషి చేసిన వాళ్ళు. లాయర్గా ఉండి చాలా కేసెస్ని ఆయన వాళ్ళ పేదవాళ్ళ కోసము వకాలత్ వహించడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఆయనకు మనము మంచి ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. हैदराबाद की सरजमीन पर लॉकडाउन के दरमियान अपनी गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों को SS भाई अलमारूफ सैयद सईद भाई की जानिब से SS अवार्ड अता किया गया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी मोहम्मद फेरोज़ खान, रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी आमिर जावेद, सदर नशीन रिसर्च कमेटी रियासती कांग्रेस कायदा उज़मा शाकिर वगैरह ने शिरकत की और अवार्ड याफ्तगान में अवार्ड्स तकसीम किए। हमारे हैदराबाद ब्यूरो मोहम्मद जफर खान को भी इस मौके पर अवार्ड से सरफराज किया गया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। Diploma level a best advisor to collect the award from Amir Javed Sahab. Next, Khala Gurudunari best Sangeet Sevkar ko. Next, please Mr. Malik. Next, Safia Mahi, a best social worker from today's constituency. अगला साहब शहर हैदराबाद की बहुत मशहूर है बाबू। नेक्स्ट डॉक्टर जयश्री मैडम गारू बेस्ट स्टेज टेलर खामोश आवाज़ करती है बेस्ट सुनना कम ऑन प्लीज सर। जयश्री मैडम अवार्ड में मना बहुत ही आगे मसाला शानदार रहेगी। Next, after that, I would like to call upon the guys. Sapatlo, Numan Sandesh Charanagar. Karikramani Tarambam Kakamunde. Next, Aisha Jamil. Next, Masrat Begum. Masrat Begum. Masrat Begum. తర్వాత इम्तियाज करने सभी जितने हमारे आज जो लिया सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे गाड़ी पर देखकर इस तरह की न्यूज़ एक बात करें सभी हमारे अंदर की मौत सारी एसएस तरफना हमारी इंटर आइटल मौसम उम्र अली तरफना भी करता है कि मौत सारी शुभाकांक्षा congratulations to all the award winners. आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए हैं हमारे हरबल अजीज SS
साहब, सलीम साहब, उनकी टीम, चीफ गेस्ट जनाब फिरोज खान साहब, अफजल भाई, अब्दुल खुदूस साहब, दानिश खान साहब, कबीर साहब, रजवी साहब, जवाद रजवी साहब और जिनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, आप सब मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। मैं समझता हूं और मैं ये बहुत अक्सर कहता हूं कि गवर्नमेंट ने कभी हमको थाली बजाने कहा, कभी दिए जलाने कहा, मगर अगर कोई फ्रंटलाइन पे काम किए तो वो आप जैसे लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपने खानदान के बारे में नहीं सोच के, अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच के जाकर जो है गरीबों के लिए और मुस्तहक़ों के लिए अब काम किया। यानी मैं काबिल मुबारकबाद देता हूं हमारे एसएस साहब को, जो हमेशा अपने सेक्युलर और एंटरटेनिंग फैमिली ओरिएंटेड इवेंट्स के लिए माने जाते हैं। मैं इनके हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूं कि शिरकत करूं, क्योंकि ये एक गंगा जमुनी तहजीब के एक एग्जाम्पल है हैदराबाद के लिए, इनका इवेंट एग्जाम्पल है और ये हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। कभी पुराने शहर के गढ़ में प्रोग्राम करते हैं तो कभी शहर के बीच एक प्रोग्राम करते हैं, मगर उनके प्रोग्राम में एक चश्मा ऐसा है, गांधी जी का चश्मा है। हिंदू भाई को भी एक नजर से देखते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी एक नजर से देखते हैं। ये खूबसूरती है उनकी और मैं ये अप्रिशिएट करता हूं कि उनको ये जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ये काबिल मुबारकबाद है। आपकी एक एक मेहनत काबिल मुबारकबाद है। मैं समझता हूं कि ये जो जज्बा जो आप लोगों के पास था, जिसके लिए आपको आज यहाँ पे दावत देकर बुलाया गया है, अगर ये जज्बा हैदराबाद के जो पावर और पैसा जिनके पास है, अगर उनके पास भी ऐसा होता तो हैदराबाद में कोई भूखा नहीं सोता। तकलीफ इस बात की है कि जिसके पास जज्बा है, जिसके पास करने की जो है दिल बोलता है, उनके रसूखात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू ऑडिटोरियम में, जहाँ आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम एसएस अवार्ड की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। इसमें तमाम मेहमान खुसूसी आज आए और तमाम सोशल वर्कर्स को अपने हाथों से अवार्ड से नवाजा। तेलंगाना बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड्स आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया था एसएस अवार्ड की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्कर और बहुत ही बेहतरीन लीडर उस्मान शाकिर जी। उनसे जानते हैं कि आज उनको यहाँ आकर कैसा लगा आपको। मैं ममनून और मशकूर हूँ सईद भाई की कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। इससे क्या है, लोगों की इज़्ज़त अफजाई होती है, उनमें और ज़ील पैदा होती है गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, उनकी खिदमत के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं अर्ज़ से तुम पे रहम करूँगा। तो इसलिए हम लोगों को जितना हो सके, मेरे भाइयों को बहनों को जिनको भी यहाँ पे अवार्ड से नवाजा है, उनको और निकलना चाहिए लोगों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की मदद के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। आइए यहाँ पे कुछ अवार्ड लिए हैं लोग, उन लोगों से भी जानते हैं। मैडम आप बताइए, आज आपको आपके काम की वजह से, एक सोशल वर्कर की वजह से आपको अवार्ड दिया गया, तो आप कैसा लग रहा है आपको आज? आप बिल्कुल बहुत खुशी हुई से अवार्ड ले लेके, बहुत खुशी हुई। और जो सो इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इसी तरह गरीब लोगों की मदद करेंगे और जितना हमसे हो सकता हम जो सो उनके लिए कोऑपरेट करेंगे। और बहुत खुशी हुई, ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती को हमारे को देखने का करीब से मौका मिला इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सईद भाई एक मिनट बाहर ले लेंगे जी, यहीं पे ले लेंगे, यहीं सबके सामने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था सईद साहब के पास साथ एसएस अवार्ड के नाम से, तेलंगाना बेस्ट वर्कर अवार्ड्स, बहुत ही अच्छा रहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैयद साहब। आइए उनसे जानते हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा और जो है बहुत खुशी की बात है कि आमिर जावेद साहब, उस्मान शाकिर जी और फिरोज़ खान साहब भी, अफजल भाई कीमती वक्त निकाल के आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा मैडम कुछ बोले। तब आइए मेरे साथ वो लेडीज़, वो ख़वातीन मौजूद है जिन्होंने इस लॉकडाउन में, पता है आपको लेडीज़ कितनी बिजी होती है घर में, लेकिन वो सब
काम छोड़ छाड़ कर वो सब तकमील कर उसके बाद फिर आवाम की खिदमत करने के लिए सड़कों पर रोडों पर निकल चुकी है। और ना वो शहर देखा है ना गांव देखा है, हर जगह वो जाकर उन्होंने जिन लोगों को भूख प्यास थी उन लोगों की कुछ प्यास बुझाने की कोशिश की है। तो मेरे साथ आज वो सब मौजूद है, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, तो उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप बताइए, आपको आज अवार्ड से नवाजा गया, आपकी जो काम था उससे आपको नवाजा गया, तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। हमको इससे दूसरी बार अवार्ड मिला है माशाल्लाह। इज़्ज़त अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको ये मुकाम पर बुलाकर और हमको ये इज़्ज़त अफजाई दिए और हमको ये अवार्ड्स दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शुक्रिया मैडम। आप बताइए, आप तो माशाल्लाह से लगे रहते हैं, आपको कैसा लगता है? हमको भी बहुत खुशी हुई और शुक्र अदा करते हैं हम भी एसएस साहब का। और पब्लिक को एक मैसेज देना चाहेंगे, हम अपन घर में बैठ रहे, पब्लिक परेशान है, वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, जाके उसको मिले तो अपने को जो बीमारी लग जाती सोच रहे वो गलत है। उन लोगों को अपन बीमारी बाद में, लेकिन अपना डर उन लोगों को पहले मार दे रहा। हमारी ये पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट है कि जाइए, पेशेंट से भी मिलिए, बस। मैडम, आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यही कहूँगी कि मौत तो हमको हर लम्हे बरहक है, ये हमको पता नहीं है कि इस लम्हे के बाद के लम्हे में हमें क्या होगा। तो हम क्यों दुनिया से डरें, क्यों कोई वबा से डरें? हम बस एहतियात, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, तो एहतियात करते हुए हर मरीज़ का ख्याल करें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें, एहतियात करते हुए हर वो गरीब का ख्याल करें जो मुस्तहक़ है। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ मैयतें ऐसी भी थीं जिनको फैमिली मेम्बर छूना भी नहीं चाहते थे, मैं उनको जनाजे के गुस्ल वगैरह भी दी हूँ और कफनाई भी हूँ। इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे ये यकीन है कि जब तक मेरी मौत नहीं है तो ज़िंदगी कुछ नहीं, ज़िंदगी से कोई मुझे मिटा नहीं सकता, और मौत है तो कोई मुझे ज़िंदगी दे नहीं सकता। इसलिए सबको यही मैसेज दूंगी मैं कि अल्लाह और उसके रसूल से डरिए, दुनिया से या किसी वबा से डरने के बजाय। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये था आज का प्रोग्राम नेहरू ऑडिटोरियम, नामपल्ली, बिल्कुल ही रूबरू हज हाउस के सामने। तमाम सोशल वर्कर यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने लॉकडाउन में बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस निकलते गए और तमाम उन मजलूम लोगों की मदद की। उन लोगों को खाने पीने के लिए, भूख प्यास से जो लोग तड़प रहे थे, जो परेशान थे, उन सबको मदद पहुंचाई। वो तो एक ज़रिया था जो कि ऊपर वाले ने बनाया था, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और इसमें मैं आपका दोस्त ज़फ़र खान को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से, जो हमने पेश की थी, जो खिदमात हमने दिए थे। तो मैं एस एस साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम टीम का। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम और अपना मनपसंद टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना रियासत की बेलोस खिदमात के पेश नज़र मशहूर साइबर हाई स्कूल बेगमपेट के चेयरमैन मोहम्मद मुदस्सिर जोहा ने मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट को तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर मसर कादरी AR डायरेक्टर, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जाकिर हुसैन DCEET, एडवोकेट ख्वाजा अयाजुद्दीन चिश्ती, नायब सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस, एडवोकेट मीर वाजिद अली खान, नायब सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम, इंजीनियर मोहम्मद अहमदुद्दीन, सियाहत डायरेक्टर लोकेश पटना और दीगर भी मौजूद थे। बोधन शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मरीजों को बारहा निजामाबाद और हैदराबाद रवाना किया जा रहा है। कल शब 1 बजे एक खातून जो कि हामिला थी दवाखाने से रुजू हुई। डॉक्टरों ने इसकी हालत देखकर इसको निजामाबाद जाने की सलाह दी। जब इस खातून के रिश्तेदारों ने इसकी वजह पूछी तो ये बताया गया कि दवाखाने में ऑपरेशन के लिए असली सहूलियत का फुकदान है और इस खातून के ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस तरह डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी से बरी होने की कोशिश की। डॉक्टर्स के इस रवैये से आवाम परेशान है और आवाम का कहना है कि डॉक्टर्स की इस गैर जिम्मेदारी पर मुकामी रुकन असम्बली आमिर शकील तवज्जो दें। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद सोफियान की रिपोर्ट। 7 बजे आए थे भैया, 7 बजे आए तो उन्होंने क्या बोले मालूम कि देखे कंडीशन सब अच्छा है अम्मा, वैसा कुछ दर्द है तो कोसी रात को भी आए तो तुम्हारा एडमिट कर लेते हम, उतना कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, अभी टाइम है आने को, क्या तुम्हारा अब क्या भी नहीं। हम बोले इतवार का दिन है, सुबह में आओ बोलते नहीं आता, सुबह में तो इतवार बंद रहता बोलते नहीं सुबह में चालू रहते, तुम कोसी रात को भी आए पकड़ते बोल के बोले। अब 3 घंटे के बाद आए, दर्द ज़्यादा होगा बच्चे 3 घंटे के बाद आए तो क्या बोल रहे हो ना, नहीं अब नहीं पकड़ते हम, बहुत कंडीशन प्रॉब्लम होगा उनका और BP बहुत बढ़ गया, फिर बच्चे की धड़कन कम हो गई, फिर से आने का अंदाजा है वैसा है बोल के ऐसा डरा दे रहे होगा वहाँ को। तब हम लोग अब कहाँ जाना इतनी रात को लेके, हमारे घर में
अब 11:30 का है हम। पहले सुबह शाम में 7 बजे आए। 7 बजे क्या बोले उन्होंने? 7 बजे आए तो क्या बोले उन्होंने, बोलते तुम लोग अब आए ना, अभी उनका प्रॉब्लम था, अभी ये है, उतना रिक्स नहीं है, तुम कभी भी आ सकते हो, आधी रात को, तुम घंटे के बाद भी आ जाओ। कौन बोले 7 बजे आओ? सिस्टर हम बोले। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।